Good morning, friends. How are you all? Welcome to our YouTube channel of Upwell School. Students, my name is Rahul and I will be teaching you mathematics. As we know, the situation outside due to the coronavirus, and that's why we are not able to go our school and to attend our regular classes. But at the same time, we also need to understand that we can't compromise with our education. So we have thought to meet you through this YouTube channel, and today I am going to start our first chapter, that is number system. I can understand that it would be little different from the regular classes that आप आते हैं स्कूल में और जो पढ़ते हैं उससे ये थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन आई कैन श्योर दैट इफ यू feel that you are going to stuck anywhere or you are not getting anything, you didn't understand anything, you can ask me anytime. I'll give you my contacts and और जितना हो सके उतने ही जल्दी से I will come back to you with your solution of any queries that you are going to raise. Okay, so before I start this chapter, I would like to discuss a little bit about the stuff that you have already studied, already learned in the maybe in previous grades, maybe in 6th or maybe in 7th or maybe in 8th. Okay, what was that? हम क्या पढ़ के आए थे नंबर सिस्टम के बारे में, हम थोड़ा थोड़ा उनको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आई एम ऑलमोस्ट श्योर दैट यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन on which we used to represent the numbers, positive numbers, negative numbers, all this type of numbers. Second thing is that you have learned about the types of numbers. Now what are the types of number? Let's recall all the things. Okay, what are the types of number? So first types of number is natural number. Now what are the natural number? All the positive numbers consider as a natural number. Let me write you. The first types of number is natural number. And students, natural number is denoted by capital N. That you will have to remember. Okay. And if I want to write the numbers, okay, so all the positive numbers will come into the natural number. Now all of us know which are the positive number. If I want to write the natural number in the set, how will I write? Okay, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. All this number will come into the natural number. ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो सब के सब नंबर नेचुरल नंबर कहे जाएंगे. ओके, क्योंकि ये सब के सब नंबर है जो वो पॉजिटिव नंबर्स है. ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ नंबर विच इज होल नंबर. And whole number would be denoted by W. Now which type of number, which numbers will come into the whole numbers? तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है. जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है उसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो आपको सारे के सारे नंबर लिख देने होल नंबर में. खाली एक नंबर ही होगा जो होल नंबर में ऐड होगा. Suppose I am going to write the natural number as it is 1, 2, 3, 4, 5. Which were the positive number? 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So you will ask that, sir, that you have written all the number as it is that you have written in the natural number. There is no difference between the natural number and whole number. So both are same. But wherever it is asked for whole number, you just need to add
0 here. 0 will include into the this set, so this set will become of whole number. आपको खाली नेचुरल नंबर जो है उसमें 0 ऐड कर देना है तो आपके नंबर जो है वो होल नंबर बन जाएंगे. अभी मैं एक और सवाल पूछूं कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है क्या वो होल नंबर है, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि सबके सब नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं. बट इफ आई आस्क यू इज ऑल द होल नंबर कम्स इनटू द नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, गलत, क्योंकि सबके सब 1 इसमें आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी आता है, लेकिन ये जो 0 नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा. ओके, थर्ड टाइप्स ऑफ नंबर इज इंटीजर्स. And integers will be denoted by z. Now it is little bit confusion here that natural number is denoted by n, whole number is denoted by w, then why integers is being denoted by z, not why not with I. Now the z letter comes from the German word Zähling, and the meaning of Zähling is count. That's why we denoted integers by z. इसलिए हम इंटीजर को z से इंडिकेट करते हैं. ओके, नाउ नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर आ गए हैं, होल नंबर में पॉजिटिव प्लस 0 आ गया है. अभी इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे, तो आपको यही करना है जो हमने पहले किया था, सारे के सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको ले लेने और एक थोड़े और टाइप्स के नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे. कैसे, लेट मी शो यू. आई एम राइटिंग एज इट इज ऑल द नंबर दैट हैज कम इनटू द नेचुरल नंबर एज वेल एज इनटू द होल नंबर. ओके, 0 1 2 3 4 5 6 and so on. Okay, I have written all the number that comes into the whole number. whole number में जो नंबर आते हैं वो मैंने सब के सब नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं. तो अभी और एक नंबर ऐड हो गए, जो ऐड हो जाने के बाद ये इंटीजर्स का सेट बन जाएगा. तो कौन से नंबर हो गए, वो नंबर हो गए -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इसका भी यहाँ पर भी कोई अंत नहीं है, यहाँ पर भी कोई अंत नहीं है, या ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हो गए, ये भी इनफाइनाइट नंबर है. लेकिन आपको खाली क्या याद रखना है कि नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर में पॉजिटिव प्लस 0 एंड इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव 0 प्लस नेगेटिव नंबर. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तब भी आपका आंसर है यस. If I ask you is all the whole number comes into the integers, तो भी आपका आंसर है यस, क्योंकि सबके सब होल नंबर भी इंटीजर्स में आ जाते हैं. बट इफ आई आस्क यू इज एनी ऑफ द इंटीजर्स कम टू द होल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि कुछ कुछ नंबर तो है वो तो होल नंबर नेचुरल में आ जाते हैं. लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स क्या वो होल नंबर है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं. ये खास याद रखना, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ सकते हैं, जिसका जाने अनजाने में हम आंसर उनका गलत लिख लेते हैं. तो आपको याद रखना रहेगा कि सबके सब इंटीजर से वो ना ही होल नंबर बनते हैं, क्योंकि ना ही नेचुरल नंबर बनते हैं, क्योंकि ये जो -1 है ये होल नंबर में भी नहीं है और ये नेचुरल नंबर में भी नहीं है. नाउ वी going to discuss about the fourth type, that is rational number. And rational number would be denoted by q. Q letter come from the word quotient. Okay, तो रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं. नाउ रेशनल नंबर में कौन से नंबर आएंगे, आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर में सब पॉजिटिव्स आ गए, इसमें पॉजिटिव प्लस 0 आ गए, इसमें पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव नंबर आ गए. तो अभी रेशनल नंबर में ऐसे कौन से नंबर हो गए जो रेशनल नंबर में आएंगे,
तो एक और टाइप्स के नंबर है कि जिसको हम सपोज कि if I want to write the definition, but before I write the definition I would like to discuss that you will easily understand the what are the exact meaning of rational number. Any number that can be denoted by p upon q. Now what is the meaning of p upon q? That any number that has numerator and denominator. कोई भी नंबर हो जिसका एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं. जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिखूं, जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिखूं 7/8, तो ये नंबर है वो रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसका एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है. कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा -23 डिवाइड बाय 69, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर कहा जाएगा क्योंकि इसको भी हम एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं. इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. p जो है वो न्यूमरेटर है और q जो है वो डिनोमिनेटर है. ओके, तो कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे. सपोज इफ हियर आई वुड लाइक टू राइट डेफिनेशन ऑल्सो ऑफ द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या रहेगी? If any number that can be written in the form of p divided by q, then it is rational number. Okay, let me give you some examples of rational number that will help you to understand what's the exact meaning of rational number. Okay, examples are 9/11, 12/99, 62 -62 divided by 31. All these numbers will be called a rational number. Why? Because all the numbers have numerator as well as denominator. Now most important thing that needs to be understand is, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या सबके सब नेचुरल नंबर जो है वो क्या रेशनल नंबर कहे जाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो आप देख सकते हो कि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं. तो आप कहोगे नहीं सर ये तो नेचुरल नंबर, इसका तो डिनोमिनेटर है नहीं, क्योंकि आपने डेफिनेशन में तो कहा कि अगर कोई भी नंबर को रेशनल होने के लिए उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इसके तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं. लेट मी शो यू. दिस इज द नंबर, नेचुरल नंबर, दैट इज अ 4. कैन आई राइट दिस नंबर एज 4 डिवाइड बाय 1? yes or not? Does it make any difference between the value of 4 and 4 divided by 1? Does it make any difference? No, because 4 is as equal to 4 divided by 1. दोनों का वैल्यू सेम ही होता है. कैसे? सपोज कि दिस इज अ 4 divided by 1. If I want to do division of 4 divided by 1, how would I do division? 1 4 जा 4, then 0. Then my answer is 4. Here is also 4. It means if I divide any number by 1, तो उसके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं बनता है. मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दूं तब भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है. वो कोई भी नंबर हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सपोज कि 9999 है, उसको भी मैं 1 से डिवाइड कर देता हूँ तब भी इसका आंसर होगा 9999. ओके, इसका मतलब कि मैं कोई भी नंबर को डिवाइड न्यूमरेटर के अंदर में 1 लिख दूं
तो उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं बनता है, उसकी वैल्यू सेम ही रखती है। तो मैं किसी भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं तो वो नंबर रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर है -2, -2 के न्यूमरेटर में मैंने 1 रख दिया, तब भी उसका आंसर होगा -2। यहाँ पर है सपोज -1 के डिवाइड में मैंने 1 लिख दिया, तब भी इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो इस कहने का मतलब है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ओके, नाउ हमारे 5वें टाइप्स के नंबर आएंगे। द 5th टाइप ऑफ नंबर इज इर्रेशनल नंबर। It is very easy. You don't need to remember much thing. अभी irrational number की डेफिनेशन क्या रहेगी? You don't need to remember any much stuff. You just need to reverse the definition of rational number. Rational number की डेफिनेशन ये थी कि अगर किसी भी नंबर को हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि अगर कोई भी नंबर है उसको हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, लेट मी राइट द डेफिनेशन। इफ एनी नंबर that cannot, हमारी ये डिफिनेशन में कैन भी था, यहां पर कैन नॉट आ जाएगा। कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p divided by q, then it is called irrational number. अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो p डिवाइड बाय q में नहीं लिख सकते। आपने बता दिया कि यहाँ पर 3 है, 2 है, सबको डिनोमिनेटर में अगर हम 1 रख देंगे तो वो तो रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो अभी आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे कुछ नंबर्स है दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि सपोज कि आई हैव नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस वुड बी एग्जाम्पल। ये सब हमारे एग्जाम्पल रहेंगे। √2, अभी √2 है, स्क्वायर √2 है, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो क्योंकि स्क्वायर √2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो बहुत लंबी और बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हम उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि और नंबर है √3, तो इसको भी हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एक नंबर रहेगा सपोज कि √4 है, तो √4 स्क्वायर √4 का आंसर बन जाता है 2, तो इसको तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर √4 है वो इर्रेशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा। इसके बाद सीधा नंबर आएगा √5, क्योंकि √5 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलता है, इसलिए स्क्वायर रूट जो √5 है वो भी इरेशनल होगा। उसके बाद √6 है वो भी इरेशनल होगा। उसके बाद √7 है, इसका वो भी इरेशनल। उसके बाद √9 वो भी इरेशनल। लेकिन उसके बाद अगर √9 आएगा तो वो इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √9 का आंसर होता है 3, जो हमें पता है, क्योंकि 3 3 होता है 9। इन सब के हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, इसीलिए ये सब इरेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं √9 नहीं लिख सकता। उसके बाद होगा डायरेक्ट √10, √11, ये सब के सब नंबर है वो नंबर इरेशनल नंबर कहे जाएंगे, क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q। ओके, तो
it is also very important to note down the things that will help you to remember as well as it will help you to in the preparation for your exam. Okay, तो आप इतना नोट्स कर लो, इसके बाद हम आगे देखते हैं. Okay, now after the irrational number, now it is our last and final types of number, that is real number. एंड रियल नंबर विल बी डिनोटेड बाय आर. हम रियल नंबर जो है उसको हम आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अभी रियल नंबर्स में कौन से नंबर आएंगे, तो आपको इसकी कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं. इट्स वेरी सिंपल. आपको खाली क्या करना है, अब तक हमने जो सारे नंबर डिस्कस किए वो सारे के सारे नंबर को हम मिला देंगे, तो सारे के सारे नंबर मिला करके, सपोज कि मेरे पास एक बैग है, इस बैग पे अब तक मैंने जो पांचों टाइप्स के नंबर डिस्कस किए वो सभी नंबर्स को मैंने अगर बैग में रख दिए, तो जो मेरे पास जो बैग होगा ना, वो बैग होगा मेरा रियल नंबर का. ओके, तो रियल नंबर जो है उसके अंदर अब तक के डिस्कस किए हुए सारे नंबर आएंगे. तो आपको पता होगा कि रेशनल नंबर के अंदर सबके सब नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स नंबर आ जाते हैं, राइट? क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर्स are all the natural number are rational number, all the whole number are also rational number, all the integers are also rational number. सभी के सभी तीनों टाइप्स के नंबर के डिवीजन में हम 1 करके उसको हम रेशनल कर सकते हैं. ओके, तो अगर मैं रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला दो, तो जो नंबर बनेंगे वो मेरे रियल नंबर हो गए. इन शॉर्ट रियल नंबर में सबके सब नंबर आ जाएंगे. ओके, if I would like to write the definition of a real number, that I can write in the simple words, all the rational number all the rational number with irrational number numbers are real number. ओके, एंड रियल नंबर हुए उसको हम आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अभी इफ आई वुड कि अगर एकदम सिंपल तरीके से आपको याद रखना हो कि कौन से नंबर में कौन सा नंबर इंक्लूड होगा, तो मैं आपको सिंपल तरीके सबसेट वाली सिस्टम से समझाना चाहूँ, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते थे. ओके, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर में आ जाते, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि नेचुरल नंबर ए सबसेट ऑफ होल नंबर, राइट? क्योंकि सबके सब नेचुरल नंबर में वो होल नंबर में आ जाते थे, एक खाली जीरो ऐड हो जाता था. ऑल द होल नंबर कम्स इनटू द इंटेजर्स, सारे के सारे होल नंबर है वो इंटेजर्स में आ जाते थे, केवल नेगेटिव्स नंबर जो थे वो ऐड हो जाते थे. उसके बाद ऑल द इंटेजर्स नंबर जो थे वो आ जाते थे रेशनल नंबर में, दैट इज डिनोटेड बाय क्यू. ओके, एंड इन ये सब के सब नंबर मिला के जो नंबर बनेंगे वो हमारे हो गए रियल नंबर. ओके, ये सब नंबर, तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको इजीली नंबर खबर पड़ जाएगी कि कौन से नंबर में कौन सा नंबर आता है. ओके, ओके, so for today just we are going to discuss about we have discussed about the all types of number. In the next chapter or maybe in the next our video we will discuss further. तो आप रियल नंबर में नोट डाउन कर दो, यहाँ तक तो आपने नोट डाउन किया हुआ ही है. ओके, थैंक यू. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स.